Good morning students. Today is 7th May and this is maths lecture for class 9th students. Today we are going to deliver 25th lecture for class 9th, and in today's lecture we will discuss polynomials. So in today's lecture we will start discussion from question number 2 onwards of exercise 2.3 NCERT. So here question number 2 here is we have to find the remainder when this polynomial is divided by x minus a. How we will find? So your polynomial is p of x here is x cube minus ax square plus 6x minus a, and we have to find remainder when this polynomial is divided by x minus a. ठीक है ना? तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p of a. Required remainder is p of a. So remainder is required remainder when we divide by x minus a. So required remainder in this question it should be p of a. तो आप यहाँ पर a पुट कर दो, a cube minus a into a square, okay, plus 6a minus a. What will get? a cube, ये क्या हो गया? a cube plus 6a minus a is plus 5a. This cancel out. We will get 5a. So your remainder will be 5a. बात समझ में आ गई? चलो थर्ड देखें. We have to check whether 7 plus 3x is a factor of this or not. तो देखो हमें ये चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है. So this time p of x is 3x cube plus 7x. So if remainder is equals to 0, if you will put 7 plus 3x equals to 0 and implies x is minus 7 upon 3. So if p of minus 7 upon 3 will be 0, that means if remainder will be 0, then we can say that yes, it's a 7 plus 3x is a factor of this, otherwise not. Very clear? अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है. जैसे मान लो ये px है, इसको मैंने डिवाइड किया gx से. सो वी आर गेटिंग सम क्वेश्चन एंड आफ्टर डिवीज़न तुमको कुछ रिमाइंडर मिल जाएगा. कुछ रिमाइंडर मिल गया यहाँ पर. सो हम लोग क्या करते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर. तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है देन वी कैन से दैट यस क्यू एक्स इज अ या जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. और बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर 7 प्लस 3x से डिवाइड करना है, तो 7 प्लस 3x से डिवाइड करना है इसे 3x क्यूब प्लस 7x को. तो सेम प्रोसेस में ये क्या है, ये px है, दिस इज योर px एंड दिस इज योर gx. तो अगर मान लो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस 0. तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि येस gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx इज अ फैक्टर ऑफ px. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे नो, दिस इज नॉट अ फैक्टर. ओके, सो वी विल फाइंड p ऑफ माइनस 7/3, 3 इंटू माइनस 7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3. राइट, नाउ वी विल सिंप्लीफाई. यू विल गेट नेगेटिव 343 अपॉन 27 and this is minus 49/3. So finally after simplification what will get here, minus 343 upon 9 minus 49/3. So we'll consider LCM. You'll get minus 343 and minus 49 into 3, that is 147. So this will get as minus 490 upon 9. Minus 490 upon 9, which is not equals to 0, which is not equals to 0. That means remainder is not equals to 0, which is not equals to 0. That means what? I'm writing this part. That means remainder is not equals to 0 implies अगर remainder 0 नहीं है तो तुम लिख दो 7 plus 3x is not a factor, is not a factor of given polynomial of px. Is that clear? तो अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. ओके, नाउ सी वी विल डिस्कस सम मोर थिंग्स. नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम.
Okay, so if p of x is a polynomial of degree n greater than equals to 1 and is divided by x minus a, where a is real number, then first p of a equals to 0 implies x minus a is a factor of px, and second x minus a is a factor of px implies p of a equals to 0। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमें मिलता है फैक्टर थ्योरम से कि पी एक्स जो पॉलिनोमियल है, कोई पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर है एंड इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, उसे एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं वेयर ए इज़ रियल नंबर। तो इफ़ पी ऑफ ए 0 आ जाता है, ये तो तुम पहले से भी जानते हो रिमाइंडर थ्योरम से कि पी ऑफ ए अगर पी ऑफ ए रिमाइंडर होता है, ये आप जानते हो रिमाइंडर थ्योरम से। पी ऑफ ए क्या होता है? रिमाइंडर होता है अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो। अब यहाँ कहा जा रहा है कि पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यू कैन कमेंट दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। और इनवर्सली इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन वी कैन से पी ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल है g(x) और हमने इसको px से यहाँ पर डिवाइड किया है, px से डिवाइड किया है, वी आर गेटिंग सम कोसेंट एंड यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आ रहा है। सो विल राइट g ऑफ x इक्वल्स टू p ऑफ x into q of x plus some remainder. Now suppose remainder is equals to 0, तो p of x into q of x into q of x। अभी p of x हमने बोला x माइनस ए है, मान लो ये x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से। चलो ठीक है, मैंने अभी उल्टा लिख लिया, कैसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो p of x मान लो यहाँ पर अभी x माइनस ए है, ठीक है, इंटू सम कोसेंट तो gx। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ gx, x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ gx। ठीक है, कैसा भी हम लोग नेम कंसिडर कर सकते हैं। मान लो अभी हमने यहाँ पर लिख लिया q, हमने यहाँ पर लिख लिया x माइनस ए और यहाँ पर लिख लिया p ऑफ x, और अभी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बात समझ गए? तो नेम है, आप कहीं भी लिखो, इधर gx, px, qx, ax कुछ भी लिख लें, ux लिख लिया, v ऑफ x लिख लिया, h ऑफ x लिख लिया, ये तो नेम है, कहीं भी लिख लें। सो बेसिकली क्या है कि आप यहाँ ध्यान दो कि व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन रिमाइंडर इज p ऑफ a, and if remainder is 0 then x minus a is a factor of that polynomial, and if x minus a is a factor then p of a equals to 0। okay, this is our factor theorem। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लें। सो दिस इज एक्सरसाइज 2.4, फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ x प्लस 1 ए फैक्टर। तुमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ x प्लस 1 एज ए फैक्टर। तो x प्लस 1 फैक्टर कब होगा? जब आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल करो, x इक्वल्स टू -1 मिला तो यहाँ से रिमाइंडर p ऑफ -1 बनेगा। तो जिस पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ -1 0 आ जाए देन वी कैन से दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दैट। Let us try first part. Your polynomial is this, p of x is x cube plus x squared plus x plus 1 है, तो p of -1 पुट कर लो। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या पुट करना है। x प्लस 1 है तो उसको x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे, वहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें पुट करना है। तो -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये आ गया नेगेटिव टू द पावर ऑड नेगेटिव -1, नेगेटिव टू द पावर इवन पॉजिटिव +1 -1 +1। देखो ये कैंसिल हो गए, आ गया 0। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल गिवन। समझ गए? चलो सेकेंड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट मैंने लिखा है, फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करके देखें।
तो अगेन x प्लस 1 से डिवाइड करना, आप क्या पुट करोगे, p ऑफ माइनस 1 फाइंड करोगे, p ऑफ माइनस 1 है, सो माइनस 1 क्यूब माइनस ऑफ माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 ओके इंटू माइनस 1 प्लस रूट 2. So this is minus 1, this is minus 1 square is 1, negative, okay, negative negative positive, 2 plus root 2 and plus root 2. So you can see plus 2 minus 2 cancel out, we will get 2 root 2, we will get 2 root 2 which is not equals to 0. So we can say x plus 1 is not a factor of this polynomial, is not a factor of this पॉलीनोमियल. बात समझ में आ गई. देखो थर्ड क्वेश्चन, इस पर क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. तो अभी हमें सेकेंड स्टेटमेंट यूज़ करना है. बोल रहा है कि इफ़ दिस इज ए फैक्टर. अभी हमें चेक नहीं करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इफ़ x माइनस 1 इज ए फैक्टर देन व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ के. तो तुम तो ऐसा बोलोगे कि अगर x माइनस 1 फैक्टर है, मैं यहाँ पर हल्का हिंट्स दे रहा हूँ, इफ़ x माइनस 1 इज ए फैक्टर देन p ऑफ 1 शुड बी 0, क्योंकि x माइनस 1 को 0 करोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 1, तो p ऑफ 1 0 आ जाना चाहिए. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ x प्लस 1 ए फैक्टर, किसका x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं है. यहाँ पर ऑलरेडी x माइनस 1 फैक्टर गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड सम अननोन k. तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज आप लिखोगे p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, और इसमें p ऑफ 1 0 करने पर क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू माइनस 2. तो फर्स्ट केस पर आंसर कितना बना, k इक्वल्स टू माइनस 2. समझ गए. आप इसको होमवर्क में करना, मैंने हिंट्स दिया अभी. फोर्थ पार्ट पर भी इफ़ x माइनस 1 इज ए फैक्टर देन p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ 1 पुट कर देना, तो k माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू कितना बना, 3/2. बात समझ गए. ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट होमवर्क में आप अटेम्प्ट करना. मैं एक्सरसाइज और आंसर की अपलोड कर दूंगा क्लासरूम ऐप पर. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया है, रिमाइंडर 0 होने पर क्या होता है, कैसे. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.